خدا موجودہ دور کو، یہ میری بات کو غور سے سنیے گا، میرا ایمان ہے خدا موجودہ دور کو روح کی نعمتوں سے بحال کر رہا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، خدا ایسا کر رہا ہے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں شفائیں ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، معجزات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم خدا کا کام قدرت سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خدا موجودہ دور میں روح القدس کی نعمتوں کو بحال کر رہا ہے کلیسیوں میں، اور اس بحالی کے سبب سے بیداری عروج پر پہنچ رہی ہے۔ جب میں نے خدا ان سے دعا کی کہ ہم روح القدس کی نعمتوں کے متعلق سیکھیں، کیونکہ خدا جو موجودہ دور کو روح کی نعمتوں سے بحال کر رہا ہے، راولپنڈی شہر میں ہمارے ارد گرد رہنے والے خدا کے خادم، کلیسیائیں اس بات کو پورے طور پر سمجھ سکیں اور اس بے خبری سے باہر آ جائیں، تاکہ روح القدس جب چاہتا ہے کہ خدا موجودہ دور میں نعمتوں کے وسیلے سے قدرت سے کام کرے تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جب ہم پیش نہیں کرتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے گا، تب مشکل ہوتی ہے، لیکن ہمیں کس طرح سوچنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک بات پر متفق ہوں، جب سب ایماندار میٹنگ میں اکٹھے ہوں گے یا ہوتے ہیں تو ہر ایک کو نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ میرا یہ ایمان ہے، میری ہدایت بھی آپ کے لیے۔ اس لیے جب ہم استعمال کریں گے تو پھر یہ سب تاثیریں جو وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ یہ پہلا کرنتھیوں 12 باب 11ویں آیت دیکھیں۔ عبرانیوں کے نام رسول پالوس کا خط اور اس کے دوسرے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ کس طرح خدا گواہی دیتا رہا؟ اپنی مرضی کے موافق۔ پہلی بات نشانوں کے ساتھ، نمبر 2 عجیب کاموں کے ساتھ، نمبر 3 طرح طرح کے معجزوں کے ساتھ، اور نمبر 4 روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات اہم ہے کہ ہم روح القدس کی آواز کو سننا سیکھیں۔ جب تک ہم روح القدس کی آواز کو سننا نہیں سیکھتے تب تک کلیسیائیں روحانی قبرستان بنی ہوئی ہیں۔ لوگ آتے ہیں چرچز میں، کچھ تو شور ڈال کے گیتوں کے شور سے بڑے ناچ نوچ کے چلے جاتے ہیں، کچھ باہر نکلتے وقت کہتے ہیں گیت اچھے نہیں تھے، کچھ کہتے ہیں کلام اچھا نہیں تھا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم روحانی نعمتوں سے باخبر ہیں، اور روحانی نعمتیں روح القدس کی قدرت کو ہم اپنے اندر کام نہیں کرنے دیتے۔ روح القدس کی آواز کو سننا جب کوئی بند کر دیتا ہے تب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ وہ کلیسیا تعمیر کرے گا۔ کون کلیسیا تعمیر کرے گا؟ کسی انسان کو نہیں دی، ورنہ کوئی شاید متفق ہی نہ ہوتا۔ بہت سے لوگ میرے ساتھ شاید متفق نہ ہوتے، بہت سے لوگ اگر آپ میں سے کوئی کلیسیا کی تعمیر کرتا لوگ متفق نہ ہوتے۔ اور نمبر 2، اگر کوئی انسان کلیسیا کی بنیاد رکھتا یا تعمیر کرنے کی حامی برتا تو جہنم کے دروازے اس پر غالب آ جاتے۔
لیکن یسوع مسیح نے اپنے متعلق کہا، یہ پترس کے متعلق نہیں، یہ یسوع مسیح کے متعلق ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس پتھر پر اپنی طرف اشارہ کر کے کہا تو پترس ہے، لیکن میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور آمنے ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح اس کلیسیا کو بنانے والا، یسوع مسیح اس کلیسیا کو تعمیر کرنے والا ہے۔ اس کی کلیسیا ترقی کرے گی، تعمیر تو تب ہوگی، ترقی تو تب کرے گی جب یہ نعمتیں عملی طور پر کام میں آئیں گی۔ اور اگر کلیسیا کے لوگ، کلیسیاؤں کے لوگ میں کہوں، اپنا وقت ادھر ادھر کاموں میں، خبریں سننے میں، کیبلز کے سامنے اور مصروفیات میں گزار دیں، اور ان کے پاس دعا کرنے کا کوئی وقت نہ ہو، نہ تو روح القدس کے بپتسمے جاری ہوں گے اور نہ ہی نعمتیں ان کو ملیں گی، ایسی کلیسیا کیا تعمیر ہو سکتی ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں روح القدس کی لوگ نہیں سنتے وہاں صرف بڑبڑاہٹ اور کڑکڑاہٹ ہی باقی بچ جاتی ہے۔ اس بڑبڑاہٹ اور کڑکڑاہٹ سے بچنے کے لیے ہمیں خداوند سے کہنا ہے خداوند میں روح القدس کو سننے کے لیے تیار ہوں، اور جب یہ نعمتیں عملی طور پر کام کرے گی، ان نعمتوں کے متعلق لا علم رہنے کی بجائے ضرور ہے ہم ان کے بارے میں سیکھیں۔ کیسے کام کریں گی؟ جب ہم سیکھیں گے پھر وہ کام کریں گے ہمارے اندر۔ اگر ہم نے سیکھا نہیں تو کیسے کام کریں گے؟ میرے عزیزو، ہم رسول پالوس کہتے ہیں اب تو وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن پھر سے مجھے حاجت ہوئی کہ تمہیں دودھ پلاؤں۔ بعض اوقات کلیسیاں بڑی بلڈنگ پر فخر کرتی ہیں، وہ چیزوں پر فخر کرتے ہیں۔ یہ شکر ہے خدا کا، بلڈنگز کے لیے شکر ہے، چیزوں کے لیے، چرچ کی چیزوں کے لیے شکر ہے، ہم نے بھی نئے بڑے سپیکر خرید لیے، لیکن یہ چیزیں کیا کلیسیا تعمیر کر رہی ہیں؟ بلڈنگ کلیسیا تعمیر کر رہی ہے، سپیکر کلیسیا تعمیر کر رہے ہیں، یہاں روح کی آواز سننے سے، روح القدس کی نعمتوں سے باخبر ہونے سے کلیسیا تعمیر ہوگی۔ روح القدس کی آواز سننے سے، نعمتوں کے متعلق جاننے سے، اس کی مشق کرنے سے، اپنے آپ کو تربیت دینے سے، روح القدس میں، یہاں تک کہ ہر نعمت کے استعمال میں عمدگی حاصل کرنے سے کلیسیا تعمیر ہوگی۔ ہماری حقیقی سچی خواہش ہونی چاہیے کہ نعمتیں ہماری زندگیوں میں عمدگی کے ساتھ کام کریں۔ جب لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ضرورت موجود ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، یا مسیح کے بدن میں، کلیسیا میں، تو ہمیں اس بہتر نعمت کے متلاشی ہونا چاہیے جو اس ضرورت کو مؤثر طور پر پورا کر سکے۔ اگر کلیسیا میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں کس نعمت کے متلاشی ہونا چاہیے؟ شفا کی، مؤثر نعمت کے متلاشی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اسی لیے رسول پولس کہتے ہیں جس کو جس قدر نعمت ملی وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کر دیں۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم پھر بھی کیا چاہتے ہیں؟ 10 گھنٹے کی سٹڈی کو آپ سوچیں میں 1.5 گھنٹے میں سمونے کو ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آخر میں روح القدس اس طرح جنبش کرے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں روحانی طور پر روح القدس کو سننے والے بننا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور ان نعمتوں کی ایماندارانہ آرزو رکھنے والے بننا ہے۔ ایماندارانہ طور پر آرزو پیدا ہو جائے آپ کے اندر، یہ میری خدا سے درخواست ہے، دعا ہے۔ کتاب مقدس
पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 31 आयत देखें, जिसको आप 31 आयत पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 31 आयत। जी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, हर एक के लिए है। यहां रसूल पौलुस किसी पास्टर को, किसी रसूल को, मुबशर को, चरवाहे को, उस्ताद को, नबी को नहीं कह रहे, कुरिन्थुस की कलीसिया को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। इन नेमतों में अपनी जिंदगियों को इस्तेमाल करने का सबसे उम्दा तरीका रसूल पौलुस आगे 13वें बाब में बताते हैं। मोहब्बत। हालेलुया। उम्दा तरीका क्या है नेमतों को इस्तेमाल करने का? इन नेमतों में अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करने का उम्दा तरीका ईमान, उम्मीद और मोहब्बत है, जो कि 13वें बाब में बयान किया गया है। ईमान से ये नेमतें इस्तेमाल होती हैं। मैं तीनों को लगा बड़ा करके बताता हूं। ईमान से ये नेमतें क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं, जो कि कलीसिया में ताजा उम्मीद दिलाती हैं। हालेलुया। और दूसरे लोगों की जिंदगियों के सबब से भी हमें हमेशा खुदा की दूसरों के लिए जो मोहब्बत है उसके लिए मोटिवेट करती रहती है। हालेलुया। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों मैंने लहदा करके बता दी। ईमान क्या करता है? ये नेमतें इस्तेमाल होती हैं ईमान में। उम्मीद से कलीसिया ताजा उम्मीद में कायम रहती है, कलीसिया में ताजा उम्मीद दिलाती है ये नेमतें, और दूसरों के लिए, खुदा के लिए और दूसरों के लिए खुदा की मोहब्बत को मोटिवेट करती हैं, ना कि गुरूर को और जेलसी को। इसलिए नेमतों को चमकाना है। दूसरा तीमुथियुस के नाम रसूल पौलुस का दूसरा खत देखिए, पहला बाब उसकी 6 आयत देखिए। इसी सबब से रसूल पौलुस तीमुथियुस को, जो उसका शागिर्द है, उसे याद दिला रहा है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया। दहशत की रूह नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं जब कोई मुझे ये फोन करके, मसीह ईमानदार मेरा गहरा दोस्त ये कहता है, बादशाह खौफ ना करें, ना रुपए पैसे का, ना किसी और बात का, आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। किस चीज की दी है? वो बड़ी मोहब्बत से मुझे कहते हैं आप आगे बढ़े। खुदा ने हमें मोहब्बत की रूह दी है ताकि मैं उस नेमत को चमका दूं जो खुदा ने मुझे दी है। रसूल पौलुस तीमुथियुस को ये कहते हैं, तू क्या कर, मैं तुझे याद दिलाता हूं। यीशु मसीह ने कहा प्याले और रकाबी को किधर से साफ कर दो? किधर से? चमका दे। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कहती हूं शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुताबिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं, बल्कि अपने खालिस इरादे, अपने खास इरादे और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यीशु में हम पर असल से हुआ। हालेलुया। ये उस इरादे के मुवाफिक हम बुलाए गए हैं। हमें क्या करना है?
इन नेमतों को ईमानदाराना आरज़ू रखते हुए चमकाना है। रोमियो के नाम रसूल पौलुस का खत, पहला बाब उसकी 11वीं है। क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। रसूल पौलुस क्या देना चाहता है दूसरों को? क्या देना चाहता है? बोलें, आप इन्वॉल्व हो। क्या देना चाहता है रसूल पौलुस दूसरों को? रोमियो की कलीसिया को क्या देना चाहता है? कौन सी नेमत? रूहानी नेमत। कोई मैं रूहानी नेमत तुम्हें दूं ताकि क्या हो जाए? मैं मुश्ताक हूं जिससे तुम क्या हो जाओ? मजबूत मसीही, मजबूत गवाह बन जाओ। ऐसे यूहन्ना और मुकाशफा की किताब में नहीं लिखता जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का, जो मसीह मजबूत ही नहीं है, ये उस दरख्त की मानद है जिसकी जड़ें गहरी मजबूत हो, वो मजबूत मसीह है। और जो मजबूत नहीं वो उसकी मानद है जिस दरख्त की जड़ें गहरी ना हो, वो किसी वक्त भी गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्या हमारी कपड़ों की सच धज की चमक रह गई है, या रूहानी नेमतों की भी चमक है हमारे अंदर कहीं? अभी मैं आगे जाके अपने तजर्बात बयान करूंगा। आइए, ये मैंने तारफ पेश कर दिया नेमतों की। ये 9 अक़साम जो हैं, इनको 3 के 3 सेट में हमने परो दिया है। पहला सेट देखना शुरू करते हैं। नेमतों का पहला सेट, नंबर ए से 1, 2, 3। नंबर ए, बोलने के इल्हाम की 3 नेमतें। बोलने के इल्हाम की कितनी नेमतें? बोलने के इल्हाम की 3 नेमतें। पहली नेमत गैर जुबाने। गैर जुबाने याद रखें, हमारे मुल्क को एटम बम की नहीं, रूह कुद्स की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल लिखता है, मुकद्दस रसूल पौलुस अपने खत में, कुरिन्थियों के नाम पहला खत, उसका 14वां बाब 13 से 15 पढ़ूंगा। इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। आमीन। बेगाना जुबान बोलना, इसको मैंने कहा बोलने के इल्हाम की 3 नेमतें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, बहुत से लोग बहुत अच्छे मसीही हैं, खुदा से प्यार करते हैं, उनके वसीले शायद कुछ और नेमतें काम कर रही हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, वो अपनी अक्ल को बेकार नहीं करना चाहते। और जब तक अक्ल को कोई बेकार नहीं करता, वो रूह कुद्स की जुबान में फरिश्तों और आसमानी बेगाना आदमियों की जुबान, जिसको वो खुद नहीं समझता लेकिन कोई और समझ रहा हो, शायद आप बोल रहे हो तो। मैं एक दफा जा रहा था एक टोटे में, ये सच्ची बात है, मेरे साथ खिदमत का बहुत सारा हिस्सा मेरे प्यारे भाई याजक है, मैं चाहता हूं वो खड़े हो जाएं। बहुत सी मैं मसाले कोट करूंगा, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, वो गवाह हैं इस बात के, आप बाद में उनसे तस्दीक कर लीजिएगा। मैं जो कलाम सुना रहा हूं मेरे साथ बड़ा अरसा रहे हैं, जब हम गांव गांव खिदमत करते थे वो मेरे साथ बड़ा अरसा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं एक दफा टोटे में सफर कर रहा था तो मैं रूह में दुआ कर रहा था। इंदला शाला खूबरा सीका मंदला रबा का मंदूरा सीका ताजीवा ताजुमा इंतलूरी सीका खबरा का तू जमान तलोरी कन सोच। मैं इसी तरह दुआ कर रहा था, मुझे नहीं पता उस वक्त
कौन सी जुबान के अल्फाज थे? फरिश्तों की जुबान थी या दुनिया में जो जुबानें बोली जाती हैं उनमें से कोई जुबान थी? मैं तो चंद जुबानें जानता हूं, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और यूनानी और इब्रानी अभी मैंने सीखी है। वो मैं थोड़ी थोड़ी सिर्फ बाइबल की हद तक, पढ़ने की हद तक, समझने की हद तक बाइबल के तौर पर जानता हूं मैं यूनानी और इब्रानी। लेकिन मैं जब बोल रहा था, मेरे साथ एक पठान बैठे हुए थे साहब, वो बड़ा खुश हुआ। मैं फिर इसी तरह, मेरी आदत है, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं गाता गाता हूँ, रूम में गाता भी हूँ, ठीक है ना? मैं रूम में गाता गाता हूँ, बड़ी शायद लेटे लेटे भी पता नहीं गाता ही गाता रहता हूँ, गाते गाते कभी कभी सो जाता हूँ। तो मैं गाना शुरू हो गया, तो मैं चुप हो गया, फिर बीच में मैं चुप हो गया, मैं कुछ को सुनना शुरू किया। तो मेरे साथ बैठा हुआ पठान थोड़ी देर बाद बोला, उसने कहा ये खोचा है, तुम पख्तून है? मैंने उससे कहा नहीं, मैं पंजाबी। वो अभी तुम अल्लाह ताला की उम्र कर रहा था, बड़ा अच्छा तरीके से कर रहा था, हालेलुया। आदमी और फरिश्तों की जुबानें, ये बेगाना जुबानें हैं। क्यों हम बेगाना जुबानें बोलते हैं? लेकिन ये रूह की मामूली है। पतरस को भी यही कहा, उसने कहा तुम नशे में हो। उसने कहा अभी तो पैर दिल चढ़ा है। जिस नशे में पतरस था, काश सारी दुनिया उस नशे में आ जाए, रूह के नशे में। हालेलुया। 3000 लोग एक वर्ष से बच जाते हैं, हालेलुया। ये नशा है वो। क्यों बेगाना जुबानें, गैर जुबानें क्यों? मैं अपनी बात को बाइबल मुकद्दस में से साबित करना चाहता हूं। जब मैं गैर जुबान में दुआ करता हूं, जो कि रूह में दुआ है, तो मैं दुआ के पुरजोश, ताकतवर और लामहदूद माहौल में दाखिल हो जाता हूं। मेरी समझ की कमी के बायस मेरी दुआएं महदूद नहीं होती, क्योंकि मेरी समझ महदूद है खुदा के मुतल्लिक, लेकिन रूह खुदा के तह की बातें भी जानता है। हालेलुया। इसलिए जो महदूद अकल से दुआएं की जाती हैं वो फल नहीं लाती, बाज़ फल नहीं दिलाती। जब मैं रूह से दुआ करता हूं, पाक रूह मेरी रूह के वसीले से खुदा से मुकम्मल हिफाजत के साथ, उसकी मर्जी, उसके इल्म, उसकी समझ और हिकमत के साथ रूह मेरी रूह के साथ मिलकर दुआ करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? रोमियो के नाम रसूल पौलुस का खत 8वां बाब निकाले मेरे साथ मिलकर। रोमियो के नाम रसूल पौलुस का खत 8वां बाब। मैं क्यों कहता हूं, यहां रसूल पौलुस क्यों कहते हैं, या यीशु मसीह ने क्यों कहा अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में, जब तक आलबे बालों से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। जो लोग मजाक उड़ाते थे रूह कुद्स, गैर जुबानें बोलने वालों का, रूह कुद्स की रूह की जुबान बोलने वालों का, फरिश्तों और आदमियों की जुबानें बोलने वालों का, वो खुद अब गैर जुबानें बोल रहे हैं। जो हालेलुया कहने वालों का मजाक उड़ाते थे, वो खुद गीत गा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये। जो हमें पेंटिकोस्टल्स को, कैरिस्मेटिक को ग्लेडू मिशन कहते थे, वो खुद इस बहाव में बह रहे हैं। वो जान गए हैं इसके बगैर कोई दूसरा चारा नहीं खुदा से बात करने का। हालेलुया। रोमियो 8वां बाब 26, 27 और 28 में आदमी मैं चाहूंगा मैं पढ़ दूं। रोमियो 8वां बाब, यहां पर यूं लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह कुद्स के मुतल्लिक है ये बात, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। रूह खुदा की तह की बातें जानता है, वो हमारी जरूरत के मुताबिक शिफायत करता है। हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं हो सकते, इसलिए
रूह में दुआ ताकतवर दुआ है, और दिलों का परखने वाला, 27 में, दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। रसूल याकूब क्या कहते हैं, तुम मांगते और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से, लेकिन जो रूह पाक है, खुदा का रूह है, पाक रूह है, उसकी नीयत को खुदा जानता है। हालेलुया। रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक, कैसे, खुदा की मर्जी के मुकद्दसों की शिफायत करता है। खुदा गैर जुबानों की नेमत के जरिए बात करता है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 3री आयत। जरूर है कि परखा जाए। इन नेमतों के जरिए आने वाला पैगाम आदमी की जरूरत पर मुनहसर होता है, और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि इसको कलाम जैसा इख्तियार हासिल है। जब गैर जुबानों में कलाम आता है, उसका तर्जुमा आता है, वो जरूरत के मुताबिक होता है, जरूरत पर मुनहसर होता है। उसको इस लिखे हुए कलाम का इख्तियार हासिल नहीं है, याद रखिएगा। इसकी बजाय जरूर है इसके सुनने वाले इससे परखें कि यह खुदा की तरफ से सच्चा और सही पैगाम है। नबियों में से, किताब मुकद्दस में लिखा है, नबियों में से 2 या 3 बोले और बाकी उनके कलाम को परखें। सो खुदा के कलाम को नॉर्मल तरीके से मुंह से निकली हुई जुबान की अगर जो समझ नहीं आ रही होती, भाई मुकद्दस में लिखा है जो कोई बेगाना जुबान में बातें करता है, कुरिन्थियों के नाम इसी 12वें 13वें 14वें बाब को घर जाकर पढ़ें, लिखा हुआ है 14वें बाब में, जो कोई बेगाना जुबान से बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, हालांकि कोई उसकी नहीं समझता। तब भी वो किससे बातें कर रहा होता है? दूसरी नेमत। मैंने कहा मैं शॉर्ट कर रहा हूं कुछ बातों को। गैर जुबानों का तर्जुमा, गैर जुबानों का तर्जुमा मैंने बताया, खुदा, मैंने इसका तमहीद बांध दिया है। खुदा पैगाम देता है गैर जुबानों में, और अगर तर्जुमा करने वाला नहीं तो लिखा फिर जुबानें बोलने वाले भी पैगाम ना दे, चुप रहे। खुदा की तारीफ बयान करते हुए तर्जुमे की जरूरत नहीं होती। एक और बात आपको बताओ, बिल्कुल चुप नहीं रहना। लिखा जुबानें बोलने से मना ना करें। गैर जुबानें 2 तरह से आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोली जाती हैं। एक प्रस्तिश करने के लिए, उसकी बंदगी। प्रस्तिश सिर्फ गाना बजाना म्यूजिक नहीं है, मैं कई बार बताता हूँ, इबादत इसको कहा जाता है उसी मानों में। गैर जुबानें इस्तेमाल होती है उसकी बढ़ियाई गाने के लिए, उसको सर बुलंद करने के लिए, उसको जलाल देने के लिए। हालेलुया। गैर जुबानें इसलिए भी इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल खुदा से पैगाम देकर। गैर जुबानी बोलने वाला रूह में महसूस करता है खुदा ने उसे कोई पैगाम दिया जमात के लिए, तो वो क्या करता है? उस वक्त तर्जुमे की जरूरत है। किस बात की जरूरत है? और तर्जुमे की जरूरत है। तो मैं बताना चाहता हूं, जब खुदा इस ईमानदारों से बात करता है तो जरूर है उसका तर्जुमा होना चाहिए, और वो जिसको गैर जुबान में ये पैगाम मिला है या कोई और इसका जिसको तर्जुमे की नेमत मिली है वो इसका तर्जुमा करे। और लिखा है जब तर्जुमा होगा तो फिर लिखा है कि जब गैर जुबान का तर्जुमा होगा तो फिर किताबे मुकद्दस ये कहती है, अगर पहला कुरिन्थियों 14 बाब 27 में है, अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो 2 या 2 से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जुमा करे। पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 19 से 29 में पढ़ें। और अगर लिखा अगर तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुप करे। कलीसिया के मजमा में, अलहदगी में आप जितनी मर्जी गैर जुबानें बोल सकते हैं। और क्या है? नबूवत तर्जुमे की बात कर रहा हूं।
और अपने से और खुदा से बातें करे। पहला कुरिन्थियों 14 बाब 19 से 29 आयत पढ़े। अगर पैगाम गैर जुबान में दिया जाए और उसका तर्जुमा ना हो तो उसका नतीजा उलझाव होगा। इसलिए उलझाव से बचने के, अगर कोई तर्जुमे की नेमत में इस्तेमाल होने वाला ना हो तो पैगाम नबूवत के तौर पर समझी जाने वाली जुबान में दिया जाए। बाज़-औक़ात खुदा गैर जुबान में पैगाम जिसको देता है उसको भी तर्जुमा दे देता है। ये 9 की 9 नेमतें एक शख्स में काम करती थी जिसने इसको लिखा, मुकद्दस रसूल पौलुस। आमीन। तो मैं एक दो और स्टेटमेंट्स दूंगा, बाइबल मुकद्दस के हवाला जात दूंगा फिर। तो पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 5वीं आयत। मैं तर्जुमा करने की आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, तर्जुमा के लिए आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं ताकि आप तर्जुमा मांगे जब दुआ करें तो। पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 5वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो। और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। मैं चाहता हूं तर्जुमा हो। रसूल पौलुस चाहता तर्जुमा हो, खुदा चाहता है जिसने ये नेमत दी है क्या हो, तर्जुमा हो। और तीसरी बात नबूवत। तीसरी बात क्या है? अब क्या हो? नबूवत हो। और इसके बारे में हमने पढ़ा, योएल 2 बाब 28वीं आयत में लिखा है, और इसके बाद हर फर्द व बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। आज हमारे बेटे और बेटियों के पास क्या है? तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। कौन सी रोया हमारे जवानों के पास? कौन सी विजन है? विजन है या डिवीजन है? तोड़ दो, तकसीम कर दो। यहां तरक्की की बातें हैं। जब नौजवान कलीसियाओं में दुआ में नहीं झुकेंगे तो उस वक्त तक कहां से ये नबूवत बेटे और बेटियों पर आएगी? नबूवत तो दुआ में झुकने से आएगी। नबूवत तो खुदा को वक्त देने से मिलेगी। नबूवत तो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने से नबूवत का रूह छू लेगा। हालेलुया। नबूवत जब बेटे और बेटियों पर उतरेगी तो हम कैरिस्मेटिक पेंटिकोस्टल लोग ये यकीन रखते हैं कि नबी का ऑफिस अलग होता है। नबी खुदा का रेडार है, ये लदा नेमत है। इफ्सियों पढ़े आप तो वहां पर आपको पता चलेगा, रसूल, नबी, मुबशर, उस्ताद, चरवाहे, ये 5 मखसूस खिदमतें हैं। नबी तो खुदा का रेडार है जो मुस्तकबिल की पेशन गोई करता है। लेकिन नबूवत में हर वक्त मुस्तकबिल की पेशन गोई नहीं होती। लेकिन जिस शख्स जो नबूवत करने लगता है वो कैसा होता है? एक और बात भी आपसे करना चाहता हूं। यही बात अमाल 2 बाब की 18वीं आयत में कोट की योएल की बात के तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? आखिर जमाने में ऐसा होगा। अब ये आखिर जमाना है, हम अपने बेटे और बेटियों को दुआ में नहीं आने देते। जब कोई शख्स सुबह उठता है, दोपहर को, शाम को, सर्दी में खुदा के घर में आकर कलील पर बैठ जाता है, दुआ करता है, खुदा उसकी कदर करता है, खुदा उससे बोलता है। जब मसीही घराना वो है जब सरबराह का इख्तियार हो अपने बीवी बच्चों पर। हम मसीही खुदा के कीमती लोग हैं। हालेलुया। हमें होश करनी है, रास्तबाज होने के लिए होश में आना है। यकीन जाने मेरे ये दिल की बात है। पहला शामिल 10वां बाब उसकी 6वीं आयत यूं लिखा है, तब खुदावन की रूह मुझ पर जोर से नाजिल होगी, तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। हालेलुया। आपके बेटे और बेटियां जब नबूवत करेंगे, आपको
उनकी बेरार रवि, उनकी नाफरमानी का गिला नहीं रहेगा और खुदा के लोग हो जाएंगे। लेकिन जब उन्हें खुदा के घर में लाएंगे तब वो बदल कर और ही हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पर हमें समझना है, पौलुस रसूल लिखता है, पहले कुरिन्थियों 14 बाब पहली 5वीं और 35वीं आयत पढ़ूंगा। पौलुस रसूल मोहब्बत के तालिब हो, रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो। अगरचे मैं ये चाहता हूं तुम सब बेगाना में बातें करो, लेकिन यही ज्यादातर चाहता हूं कि नबूवत करूं और बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। पसाए भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो। नबूवत के मुतालिक एक बात बताना चाहता हूं, ये नेमत शख्सी रहनुमाई के लिए नहीं है। ये मेरी रहनुमाई के लिए नबूवत नहीं मुझे मिलेगी। मेरी रहनुमाई के लिए मुझे चाहिए, शख्सी हर एक की शख्सी रहनुमाई के लिए चाहिए, हमें खुद यीशु से कहना है। याकूब रसूल का पहला बाब 5वीं आयत देखें, शख्सी रहनुमाई के लिए हमें क्या करना है। ऐसी नबूवतें ना करें, ऐसी नबूवतों ने कलीसिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पहला बाब 5वीं आयत, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। शख्सी रहनुमाई खुदा से खुद मांगे, हिकमत मांगे, आपको दी जाएगी। नबूवत दूसरों की रहनुमाई, कलीसिया की तरक्की के लिए, नबूवत कलीसिया की तरक्की के लिए होती है। नबूवत को परखने के 7 इम्तिहानात जल्दी से बताऊंगा हवालों के साथ। क्या ये नबूवत कलाम से इत्तेफाक करती है? अगर नबूवत की बात कलाम के मुताबिक नहीं, कोई नवी गल करके बयान कर देती है, इसका मतलब है वो दिल का ख्याल है, वो नबूवत नहीं है। गलतियों पहला बाब 8वीं। नबूवत करने वाले की जिंदगी में कौन से फल हैं? नबूवत तो कर रहा है, इसकी जिंदगी में फल चेक करें कौन से हैं। इसकी जिंदगी के फल क्या है, फल चेक करें। मत्ती की इंजील 7वां बाब 15वीं-16वीं आयत में, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। फिर नबूवत को परखने का यह तीसरा तरीका, क्या ये खुदा को जलाल देती है? यूहन्ना की इंजील 16 बाब 13वीं-14वीं आयत में, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। क्या नबूवत जलाल दे रही है यीशु खुदा को? क्या ये पूरी हुई है? 18 बाब 21 से 22 में नबूवत के मुताबिक बड़ी सख्त बातें हैं। लिखा, अगर किसी नबी की नबूवत 3 बार झूठी साबित हो उसे संसार कर दिया जाए। 18 बाब 21 से 22 में क्या ये पूरी हुई है? और अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाकया या पूरा ना हो तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है, तो उससे खौफ ना करना। क्या ये नबूवत खुदा की तरफ लाती है या खुदा से दूर ले जाती है? ये नबूवत का बहुत बड़ा टेस्ट है। इस्तिस्ना 13 बाब 1, 2, 3 आयत, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हुआ हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे और वो तुझसे कहे कि आ हम और मबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करे, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात ना सुनना। क्या ये आजादी दिलाती है या गुलामी में ले जाती है? रोमियो 8वां बाब की 15वीं आयत में लिखा, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। मैंने पता अगर खौफ दिलाता है खुदा की मोहब्बत उसमें नहीं, आजादी नहीं महसूस होती, तो ये गलत है। रूह की अंदरूनी गवाही क्या है? पहला यूहन्ना 2 बाब 20 में आयत, और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। जब आप रूह में आप पहचान लेंगे,
हमें मसा किया गया है, हम सब जान सकते हैं। रूहानी आदमी सब बातें परख लेता है। हालेलुया। अब हम आगे चलेंगे। नबूवत, मैं कुछ बातें स्किप कर रहा हूं, मैं फिर कहता हूं। नबूवत करना तरक्की, तसल्ली और नसीहत है। नबूवत करना क्या है? पहला कुरिन्थियों 14 बाब 3 है। सबसे बढ़कर ये कि वो ही नबूवत हासिल करें जो कि आपकी रूह की गवाही दे। पौलुस के अल्फाज याद रखें, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। हालेलुया। ये है कलीसियाई नबूवत में रूह कुद्स की मर्जी से नबूवत। अब मेरा जी तो चाहता है हमने पहला हिस्सा भी खत्म किया है, हम कुछ देर के लिए खड़े हो जाए और दुआ करें। आइए नबूवत की रूह को मांगना शुरू करें। अगर आप गैर जुबानी नहीं बोलते, कोई यहाँ है, आप गैर जुबानी मांगे। अगर आप, फिर हम दूसरा और तीसरा हिस्सा करें। अगर आप गैर जुबानों का तर्जुमा नहीं आपके पास, तो मांगना शुरू करें। रूहों का इम्तियाज, इल्मियत का कलाम और हिकमत का कलाम, इसके बाद ईमान की नेमत, शिफा की नेमतें और मौजज़ात। स्टे विद मी, स्टे विद गॉड। हालेलुया।